we just talked about productivity. So we theoretically understood the idea of productivity. Now we are about to start the formula of productivity through which we can solve or we can get the value of a productivity in any organization. So we will be having multiple numericals. Inshallah, 4 से 5 numerical कराऊंगा मैं. But still I will be giving you few numericals for homework. ठीक है? So you have to complete. It may be the assignment, first assignment of yours. ठीक है? I will be telling you at last. Anyway, let's begin. Productivity, please write it down. Productivity equals to unit produced and input used. So as many unit you produce divided by input you used. Divided by input you used. Okay, unit produced in every numerical of yours, what you have to do, you have to read it out and understand that what are the factors, what are the input used for a particular output. This is a very important point. For particular output, what are the inputs used? ठीक है? Not every input is used for a particular output. For example, there can be a labor, there can be output through labor only. There can be output through labor input only, and there can be output through labor, energy, capital, management, technology, etc. ठीक है? So you need to understand that there can be multiple productivity on the basis of the input, on the basis of input. ठीक है? अच्छा जी. So I guess it's very easy to understand. ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि थ्रू प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव. तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैन बी इम्प्रूव व्हेन वी अर्न मोर. तो ऑब्वियसली वी स्पेंड मोर. तो आउटपुट रिलेटिव टू इनपुट है. अब हम ये कहते हैं कि वी आर प्रोड्यूसिंग, फॉर एग्जांपल वी आर प्रोड्यूसिंग 100, वी आर प्रोड्यूसिंग विद द 100 रिसोर्सेज और वी आर प्रोड्यूसिंग 100 विद द 60 रिसोर्सेज. विच वन इज़ बेटर? Which one is better? बात समझ में आ रही है? तो ये इंपॉर्टेंट है. आउटपुट से ज़्यादा द मोर इज इनपुट इज इम्पॉर्टेंट. whenever we cannot see unit produced in isolation, we need to see what is the input. So this is a very important concept. चलिए जी next. Let's talk again about the Starbucks who improve its productivity. ठीक है? And in a milliseconds, or you may say in a few seconds, they improved how many dollars? So what are the things they improved? Does anyone remember through this case study what we learned? They improved through not taking the signature from customer at the transaction slip. At the credit card slip, they did not take the signature. That saved the time. कितना टाइम सेव किया? 8 seconds. 8 seconds. ठीक है? Then again, what happened at Starbucks when they put the scoop inside the jar? They try to find out the ice. So it takes a lot of time. So what happened? And the size of the scoop was not appropriate as per the ice. So they made the appropriate scoop for the ice. So how many seconds? 14 seconds. 14 seconds additional cut because of this improvement. So first improvement is credit card signature. Second improvement, through the scoop they got. And another one was coffee button. For the coffee you have to press the button instead of automatic system. You have to press the button and it takes a lot of time. So for 12 seconds per espresso shot they reduce. So in total
How many seconds they improve? 34. Okay, and actually that 34 seconds increased volume, yearly volume by $250,000. $250,000. So this is the case study that how Starbucks improved their process and productivity. So by improving the productivity, they improve their profitability. Okay, any questions so far? Okay, let's move ahead. Let's move. अच्छा, I already told you single factor productivity, multi-factor productivity. Single factor is when only labor is involved. Only labor is involved. Multi-factor means other than labor. Labor plus energy plus capital plus technology, miscellaneous management, और चीज़ भी उसकी. So these are the multi-factor. चले आगे. So this is the formula we already discussed. You see how many units produced, 1000 units produced, and in 250 labor hours. ये labor hours है. It has to be labor hours. Labor hours. So what would be the output? Units per labor hour. Units, 4 units per labor hour. 4 units. We see total unit produced through the labor is 1000. कितने? 1000. How many hours labor worked for the 1000 units? 250 hours. कितने hours? 250 hours labor worked for 1000 units. So you see productivity is there. 4 units per labor hour. 4 units produced per labor hour. पास में आ रही है इसको ऐसे. And I want interpretation in the exam. I want this. Okay, that will have an mark for you. That will have marks for you. Because without interpretation, it seems like you do not know the idea. Since I already discussed the theory behind it, so you need to know whatever the productivity is, you need to interpret that units per labor hour. ठीक है, clear है यहाँ तक? Is there anyone who is unclear about it? Is not clear? Next. Sure. Another one, you see the multi-factor. Multi-factor, it's a multi-factor. You see multi-factor. Output divided by labor plus material plus energy, miscellaneous. Also known as total factor, that we take all of the factors. So total factor भी है. ठीक. Next. And it is expressed in dollars. Back करो. It is expressed in dollars. Remember, it is expressed in dollars. It is expressed in dollars. And that was the single factor was labor hour. जी single factor. That was a whatever answer would be in dollars. In dollars. Labor would be in dollars. For example, 250 hours labor worked and it cost you $4,000. How much? 4,000 would be here. Material would be in dollars. Energy would be in dollars and capital and other miscellaneous would be in dollars. So answer would be in dollars. For example, 4 units per dollar. Let's see. अभी हम उसको करते हैं. अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो बचेगा. अच्छा जी. Now we are about to start the numerical. Can you focus? Can you focus that? Is it clear? Can you see that? This is the easiest one. In the exam, I will not be giving a single factor. I am telling you prior. I will not be giving you a single factor. I will be giving you a multi-factor. Multi-factor is when you have more than
one resource. अच्छा जी, Chuck Socks makes wooden boxes in which to ship motorcycles. ठीक है, motorcycles has to ship in the box. Chuck and his 3 employees invest a total of 40 hours per day. कितने इन्वेस्ट किए उन्होंने? 40 hours. तो that is what? पर डे, ऐसा ही है. मेकिंग दी 120 बॉक्सेस, तो आउटपुट कितना है? 120 बॉक्सेस. ठीक है, अब बताएं आप व्हाट वुड बी दी प्रोडक्टिविटी. तो प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है हमारा? क्या फॉर्मूला प्रोडक्टिविटी? ठीक है, यही है. तो हमने कहा यही आया. क्या है 3? क्या 3 क्या? हाँ, 3 यूनिट्स पर लेबर आर. ठीक है जी, आगे चलें. ये सिंगल फैक्टर. अगला बी, ये कंप्लीट नहीं हुआ, बी आ गया. चक एंड हिज एम्प्लॉइज. ठीक है, और इनपुट हमारी क्या हो रही? इनपुट सेम है. क्या है हमारा? अब बढ़ गई प्रोडक्टिविटी 3.12. 3 यूनिट्स पर लेबर. ठीक है, अच्छा. अब जो सवाल है वो है परसेंटेज चेंज. ये इंपॉर्टेंट सवाल है. अब हम देखते हैं चेंज कैसे आता है. चेंज ऐसे आता है कि 3.12 माइनस 3 कितना आया? तो 0.12 इज अ चेंज. 0.12 इज. अब सवाल क्या है? व्हाट विल बी देयर परसेंटेज चेंज? व्हेन वी टॉक अबाउट द परसेंटेज चेंज, इट मीन्स परसेंटेज चेंज इज is 0.12 divided by what was the initial? क्या है आंसर? 4.16. एग्जैक्ट 4 आया. 16 कहाँ से आ गया इनका? 4. ठीक है जी. तो क्यों किया है? वेरी गुड क्वेश्चन. वाई आई हैव डन दिस स्टेप? यू सी, व्हाट विल बी देयर परसेंटेज चेंज? प्रोडक्टिविटी की व्हाट इज दी चेंज इन दी प्रोडक्टिविटी? परसेंटेज में मालूम की गई है. तो फर्स्ट वी नीड टू नो द चेंज. दिस इज द चेंज इन प्रोडक्टिविटी. चेंज इन प्रोडक्टिविटी. चेंज इन प्रोडक्टिविटी. ठीक है, अब यू सी चेंज इन प्रोडक्टिविटी आ गया. व्हाट वी हैव टू डू विद द इनिशियल नंबर, जो हमारा इनिशियल था, तो हमने 3 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 100. ये क्यों? परसेंटेज की वजह से. रेशो नहीं, परसेंटेज है. दिस इज अ परसेंटेज. रेशो तो प्रोडक्टिविटी जो हम निकाल चुके थे. और ये क्यों लिया? क्योंकि इनिशियल से हम देखना चाह रहे हैं ना कितनी इंप्रूवमेंट आई. जी 3.12 ये है कि सबसे पहले हमने देखा कहाँ 3 आ रहा है. 125 डिवाइड बाय 40 क्या आ रहा है? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन.
देखिए मैं दोबारा बता रहा हूँ और सुने। सबसे पहले सवाल में था कि आपके 40 लेबर आवर्स पे आपने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए? 120 बॉक्सेस प्रोड्यूस किए। कितने प्रोड्यूस किए? उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने कहा जी इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, 125 बॉक्सेस प्रोड्यूस होने चाहिए। तो उन्होंने कहा जी मालूम करें कि 125 बॉक्सेस में व्हाट वुड बी दी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट। तो आपको पता ही चला, आपने जब फॉर्मूले में लगाया तो आपने देखा जी पुरानी जो प्रीवियस आउटपुट थी लेबर आवर्स पे वो 3 यूनिट्स थी पर लेबर आवर। ठीक है, सुनना में जिनको समझ में नहीं आया था। और नई आउटपुट पे 3.12 पर लेबर आवर है। ठीक है, ये डिफरेंस आ गया। अब आपको पता है कि नई क्या है? 3.12, पुरानी क्या है? 3। यही प्रोडक्टिविटी है, यही प्रोडक्टिविटी है। अच्छा, अब हमने कहा डिफरेंस कितना है? 0.12 का डिफरेंस आ गया, बढ़ गई। ऐसे ही हुआ। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि वी वांट टू नो दैट इज इट व्हाट इज द परसेंटेज चेंज फ्रॉम द प्रीवियस, तो प्रीवियस क्या थी? प्रीवियस क्या थी? और हमें परसेंटेज चाहिए तो हमने मल्टीप्लाई 100 कर दी। क्लियर हुआ सबको? इज देयर एनीवन हु इज नॉट क्लियर? Is there anyone who is not clear? हाँ, सी पार्टी तो बताया मैंने। वॉट डी पार्ट वो करा था। सी तो हमने कर दिया ना। यूनिट इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी पर आवर ना, तो हमने यूनिट इंक्रीज तो निकाल लिया ना पर आवर। वॉट विल बी देयर यूनिट इंक्रीज, तो यूनिट इंक्रीज हमारा 0.12 आ गया। परसेंटेज चेंज ये आ गया, तो सी ये हो गया और डी ये हो गया, डी ये हो गया। ठीक है जी। कैसे आया 3? कैसे आया? देखें, सबसे पहले इन्होंने कहा है कि एक साहब थे चक कंपनी का नाम, चक। लेट मी रिएटेड, चक इज़ द नेम ऑफ द कंपनी एंड दे व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मेकिंग द बॉक्सेस फॉर मोटरसाइकिल। ठीक है, तो हाउ मेनी बॉक्सेस दे आर मेकिंग? 120 बॉक्सेस इन 40 लेबर आवर्स। आपने इसकी फॉर्मूला लगाया, आपने कहा जी 3 यूनिट्स पर लेबर आवर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इन्होंने कहा कि व्हाट विल बी द प्रोडक्टिविटी इफ़ वी विल बी प्रोड्यूसिंग 125 बॉक्सेस। ठीक है, तो व्हाट यू हैव डन द प्रोडक्टिविटी अगेन। तो आपकी प्रोडक्टिविटी 3.1 यूनिट्स पर लेबर आवर आ गई। अब अगला सवाल ये है व्हाट विल बी देयर यूनिट इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। तो इंक्रीज क्या हो रहा है? 0.12। व्हाट इज द न्यू वन? 3.12। ओल्ड वन 3, इंप्रूव हो गई। ओल्ड 3 इज फ्रॉम हियर। डी वाला पार्ट क्या है? व्हाट इज द परसेंटेज चेंज? व्हेन वी टॉक अबाउट द परसेंटेज चेंज वी नीड टू डिवाइड इट विद द ओरिजिनल वन। ठीक है, ओरिजिनल कौन सा था? 3, जिससे इम्प्रूव करा है, तो 3 से हमने करेंगे मल्टीप्लाई की। क्लियर है सबको जी? सर 3 से इम्प्रूव कैसे किया? 3.12 से इम्प्रूव किया है ना, जब हमने 120। 3 से 3.12 पे है ना। सर इसका मतलब ये ना 1 घंटे में 3 यूनिट्स प्रोड्यूस होने हैं। अच्छा जी, क्लियर है? शुड वी मूव ऑन? अच्छा, basically as I already told you that I will not be giving you this easy numerical, but still you need to have this concept first. ठीक है, concept जरूरी। फिगर नहीं
डिफ़िकल्ट नहीं था? अभी देखें आप, अभी पार्टी शुरू हुई है। ओके, लेट्स मूव अहेड। अनदर न्यूमेरिकल, ये आप खुद करेंगे, करें, सेम है? एक ही फैक्टर है ना, इससे भी एक ही फैक्टर है, एक ही फैक्टर। हाँ, खुद करें जल्दी से, हरिए बरिए। वो जो भी आप दिल चाहे करें, आप समझा चुका हूँ। ओके, ट्राई इट आउट, ट्राई इट आउट। सिंगल फैक्टर है। आप बताएं मुझे, सिंगल है मल्टीपल है? मोबाइल बंद होने वाला है शायद, अच्छा, उस पर नोटिफिकेशन आएगी तो 15% बैटरी। 3% बहुत। मल्टी फैक्टर किसने कहा? हाँ हाँ, तो करो जो पता है, करो करो, कुछ नहीं। ओके जी, शाबाश शाबाश शाबाश। इंडिविजुअल असाइनमेंट है, डू नॉट डिस्कस। अथर साहब, अथर साहब, जो हो जाएगा कर दें भाई, मुझसे क्यों बता रहे हैं, करें। शाबाश शाबाश शाबाश, मजे का है ये। क्या हो, मैं बताऊं? तो और क्या है ये, सब इनपुट है। शाबाश शाबाश, एवरीवन मस्ट बी डूइंग and do not copy anyone's. Done? Done? Very good. अब बी करें, ए हो गया तो बी करें, बी हो गया तो सी करें, सी हो गया तो रेस्ट करें। नहीं, उतरो। कौन है ये? ठीक है जी, ए पार्ट इज डन। अब बाकी आप करें। हो गया, वेरी गुड।
आपका भी हो गया? क्या बात है, देखे तो आसान था, लेकिन ये पेपर में नहीं आएगा, बार बार बता रहा हूँ। ये तो ऐसे ही थोड़ा वार्म अप है, वार्म अप है, ये एपिटाइजर है। डन, इजी था ना? इजी, बहुत इजी। मैं थोड़ा सा कॉमन सेंस को रखें। अच्छा, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट व्हाट दे डू, दे ट्राई टू फाइंड आउट द नंबर्स सो दैट दे कैन पुट इन द फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। दिस इज नॉट द वे। यू हैव टू रीड द न्यूमेरिकल, व्हाट न्यूमेरिकल इज सेइंग, व्हाट इज द सिनेरियो। अब आप देखें, द एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स आर नॉट गिवन, ऐसा ही है, एग्जैक्ट नंबर्स आर नॉट गिवन, वी नीड टू टेक इट आउट through this. Of the one who is finding the exact number, so they will be wrong. The one who has understood the question, they can easily solve this. Concept is very important. Done? आपका भी हो गया? आगे करने की जरूरत तो नहीं है? नहीं? Do you want me to do part B as well? Yes. चले पार्ट बी भी कर लें। अब पार्ट बी कर लेते। जॉन गुडेल, द मैनेजर एट कार्बनवेल, चेंज द लेआउट, एबल टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, एबल टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू 180 यूनिट्स। अब प्रोडक्शन कितनी हो गई? 180 यूनिट्स पर 8 आवर शिफ्ट। व्हाट इज द न्यू लेबर प्रोडक्टिविटी? 2.25। शाबाश, शाबाश, आप लोग तो चीते हो गए। परसेंटेज पूछिए, नहीं, हाँ पूछिए। व्हाट इज द नंबर? ठीक है जी, इतना आसान था, आसान था ना? आगे चलें। नहीं, इतना आसान नहीं आएगा। ये तो आपका भी, अभी आपके इंजन को गर्म किया हमने। क्लास में नहीं आता, मिटा दूं? हाँ, इंडिविजुअल असाइनमेंट के मार्क्स होंगे। अच्छा जी, लेट्स मूव अहेड। आगे, बैक बैक बैक, नंबर आदमी बैक। अब मैं जो ना बैक करना और फ्रंट कर, फ्रंट, बस। अभी जल्दी से करें, ये बल्कि कर लेगा आप, ये भी सर सिंगल फैक्टर है। आगे चलें, मल्टी फैक्टर पे करते हैं, ये कर लेगा आप। ये भी सिंगल फैक्टर है। आगे चलें, अब आ गया मल्टी फैक्टर। करें जल्दी, फटाफट करें, करें भाई, करें 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 करें, तब जल्दी। नहीं, क्लास ऑन होगी इसके बाद तो भाई, चलें जल्दी करें। मल्टी फैक्टर 1.8। क्या होंगे आप बताएं? बस वही होगा जो चाहिए। कौन सा मल्टीप्लाई है? नहीं, क्या चीज़ मल्टीप्लाई? नहीं, वो एक अलग चीज़ थी। अच्छा, ये मैंने पढ़ा नहीं है, करो करो करो। ये फैक्टर आपस में प्लस होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अतर साहब, एनर्जी प्लस लेबर प्लस मटेरियल प्लस ब्ला ब्ला,
ये सब क्या होगा, ये होगा। तो मैं ये कह रहा था, आप पता नहीं किसी बात, मैं यही बता, चलें ये फॉर्मूला में लिखवाया तो था मैंने यार, और क्या लिखवाया था। शाबाश, जल्दी जल्दी। चलें सॉल्व इट। I will ask you. ए और बी में बताता हूँ, याद आ मुझे। अच्छा, one of the student asked me that what is the difference between A and part B. See, part A is the labor productivity only. It is the one factor, single factor productivity only. Part B, what is the multi-factor productivity? That is more than one factor, more than one resources. For these tire at lakefront manufacturing. बस ये differences. क्या मतलब कि with labor, what is the productivity with labor? What is the productivity with all this? जो भी दिए मैं, जो भी total factor और labor. जल्दी शाबाश। ये क्या है? What is the answer? भाई साहब इसका आंसर क्या है? ये यार 400 ठीक है। यही है, यही है 1000 टायर्स 5000 घंटों में, ऐसा ही है क्या गलत है? सही क्या है? सबको प्लस करेंगे। मैंने तो ये निकाल रहा हूँ ना। मुझे जब लगेगा जब आप बताएंगे क्या सही है गलत है।
आंसर इज